اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا. یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ہے، اب تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے. بڑی شخصیت ہے جنہوں نے نعت کا نذرانہ بھی اس لیے آواز ہونی چاہیے. میں ماشاءاللہ ٹھیک رہے اہلا وسہلا مرحبا. یہ ائمہ تنظیم کے صدر I, Shafia Farooq, on behalf of Al-Aman Educational and Welfare Trust, warmly welcome everyone, outstanding guests, correspondents, teachers, anniversary event to celebrate an important milestone in Al-Aman Educational and Welfare Trust history. I want to thank you all for taking the time from your busy schedules to join us for this occasion. میرے پاس چیف گیسٹ مہمان خصوصی سجاد خان صاحب بھی تشریف لائے. میں تمام 25 سال پہلے ایک چھوٹی بنیاد پڑی تھی. ایک اس طرح سے واقعہ ہوا کہ ہمارا اخبار چل رہا تھا ڈیلی سلطان کے نام سے اردو میں. تو میں ہے نا 90 کے دشک میں ہم لوگ رپورٹنگ کرنے جا رہے تھے. بہت سارے سلمز کو جا رہا تھا، میں بچھڑے ہوئے علاقوں کو جا رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہاں کی حالت بہت خستہ ہے. تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی. ہم لوگ اتنا اچھے انداز میں جی رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ ان کے پاس کپڑے ہیں پہننے کو، نہ کھانا ہے، وہ کچرے میں چن کر کھاتے تھے. تو 10 سال پہلے ایک بزرگ ہم لوگوں کو ملے. کئی جگہ ہم ڈھونڈے اولڈ ایج ہوم جو مسلمانوں کا، تو پورے بنگلور شہر میں ایک اولڈ ایج ہمارا نہیں ملا. تو میں دوسرے مذہبوں کے اولڈ ایج ہوم میں گیا تو کئی مسلمان تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ ان لوگوں کی بہت پریشان تھے وہ کہ وہاں پیڈ ہوم چلا رہے ہیں. یہ غلط میسج جائے گا عوام میں کہ ہر کوئی بچہ لا کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، لیکن ہم لوگ ویسے کوئی اسکول نہیں، گورنمنٹ ڈف کا نہیں ہے، ریہیبلیشن. تو اس واسطے میں گزارش کرتا ہوں علماء کرام سے اور لیڈروں سے اور بڑے اداروں سے جو ایڈکشن سینٹر کے لیے میڈیکل سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے.
क्योंकि वो बच्चे जब उनको वो मिलती नहीं है चीज तो वो अपने Dignitaries, ladies and gentlemen, and especially to Amir-e-Shariat of Karnataka and the President of All India Imam Organization, Imam Umair Ahmad Ilyasi Sahib. I feel extremely blessed to be a part of this prestigious program, and I thank one and all of you for joining us. Falaq, which means पढ़ो अपने अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया. By this we should understand the importance of gaining knowledge. The reason of our existence is to please Allah subhanahu wa ta'ala. And we can do so by continuously learning good things and beneficial teachings and putting them into action. हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना फर्ज है. मर्द दीवाना गुजारिश करते हैं कि आप कर्नाटक के अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद. अल अमान एजुकेशनल का ये 25वां साल इस वक्त मनाते हुए ये मजलिस मुनाकिद की गई है. अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरे इल्म में है ये ट्रस्ट, ये अल अमान एजुकेशनल, जहाँ तालीमी और समाजी और दीगर पढ़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, खिजा के बाद बहारों ने साथ छोड़ दिया. खिजा के साथ बहारों ने साथ छोड़ दिया. लगी जो आग तो गुलशन भी जल के खाक हुआ. लगी जो आग तो गुलशन भी जल के खाक हुआ. गुलों के मिटते ही खारों ने साथ छोड़ दिया. तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर गुल जलते हैं, अगर फूल जलते हैं, उसके साथ कांटे भी जल जाते हैं. तो गुलों के साथ खारों ने साथ छोड़ दिया. फैलते किस तरह, पहुंचते किस तरह मंजिल पे हम भटकते हुए, फैलते पहुंचते किस तरह मंजिल पे हम भटकते हुए, अंधेरी रात में तारों ने साथ छोड़ दिया. ये इदारा जो है, ऐसे इदारे काफ़ी होने चाहिए कर्नाटक में और हिंदुस्तान में, क्योंकि मेरे 30 साल की सर्विस में मैंने जो देखा है कि हमारी कौम जो है एजुकेशन से महफूज है. हमारे लोगों में जो है, मुसलमान लोगों में स्पेशली जो है एजुकेशन की बहुत कमी है, बहुत ही. तो बिना इस्लाम के क्या फर्ज होता है? जो इस्लामी नहीं है तो क्या फर्ज होता है? मैंने भाई, मेरा बाप, बिना का मतलब फाउंडेशन होता है. पहले ये तो सीख ले, व्हाट इज द फाउंडेशन. तो पहले बिना इस्लाम, तो बिना अपना फाउंडेशन तो ठीक करो. हमारा खुद का फाउंडेशन नहीं है तो दीवार बनने के क्या फायदा? आगे चल के ना तो वो दीवार ना तूफानों का सामना कर सकेगी, ना बरसातों का सामना कर सकेगी, गिर जाएगी. तो फाउंडेशन वो घटे. इंशाल्लाह कभी और मेरे को अल्लाह मौका देता तो कभी बात करूंगा. आप लोग तमाम मेरे को इतना वक्त सुने, पहले तो अल्लाह का शुक्र है, सब आप तमाम का शुक्रिया, और मोअज़्ज़िज़ फारूक साहब और सालिक साहब का शुक्रिया जी मेरे को यहाँ बोलने का. बच्चों को प्यार और रिस्पेक्ट नहीं देते तो जब वो बूढ़े होते हैं और लाचार होते हैं तो बच्चे उनको रिस्पेक्ट नहीं देते. So respect and love is a two-way street. So you have to bring up your children in the right way. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought up his children with love and gave a lot of love to his wife. He treated his wife equally. So we have to. एक जख्म ही नहीं, सारा जिस्म है झलनी. दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे. तो कौम की आज हालत हमारी यही है. फारूक साहब का जब आशियाना अभी शुरू के स्टेजेस में था, फारूक साहब ने खुद आकर मुझे अपने घर के पास से वहाँ पे पिकअप करके लेकर गए. मैंने वहाँ पे देखा कि कितने बेचारे औरतें, मर्द और तमाम वहाँ पे बुजुर्ग खवातीन और हजरात किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं. वाकई ये काबिल तारीफ और काबिले मैं कुछ कह नहीं सकती कि काबिले बहुत ज्यादा इसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक आशियाना फारूक साहब का नहीं, हर एक के दिल में ये दर्द होना चाहिए
कि हर कोई अपने बुजुर्गों के साथ बेहतरीन सलूक करे। ये जो आज का प्रोग्राम ये अल अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये जो मुनक़िद किया गया प्रोग्राम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार प्रोग्राम है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, फिर दूसरी बात ट्रस्ट का बहुत बड़ा शुक्र है क्योंकि एक ऐसा उम्दा काम ये इस मुआशरे में जो सबसे आज के दौर में जो सबसे बुरी चीज़ है, उस बुरी चीज़ का मतलब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो वालिदैन जो बूढ़े माँ बाप जिनके हाथ से काम काज करने को नहीं होता है, ऐसों को आज के मुआशरे के लड़के लड़कियां मतलब बच्चे माँ बाप को बूढ़े माँ बाप को रास्ते पे छोड़ देना, फिर ऐसों को ऐसे बेसहारा लोगों को ये ले आके यहाँ आशियाना में उनको जगह दे के फिर उनको खाना पीना उनकी देखभाल करना दवा दारू करना, ये इतना बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं अल अमान ट्रस्ट वाले। ये देख के मेरे को बहुत खुशी होता है। बस दुख ये होता है कि आज के मुआशरे में इस तरह के बच्चे क्यों हैं जो अपने माँ बाप जो पैदा करता माँ बाप हैं उनको ही ये ऐसी बुरी हालत में रास्ते में छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अल अमान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के 25 साल मुकम्मल हुए हैं और आशियाना ओल्ड एज होम के 10 साल मुकम्मल हुए हैं और आशियाना फूड बैंक के 5 साल मुकम्मल हुए हैं और आशियाना स्किल डेवलपमेंट का आज बिल्डिंग का इफ्तिताह है। ये हमारा सफ़र 25 साल का गुज़रा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊंच नीच हुई है, आगे पीछे हैं, स्ट्रगल किए हैं हम लोग, एक एक ज़र्रा करके हम लोग है ना ये इदारे को बनाए हैं। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए हम लोग और आगे चलें और इदारे बने। ये जो है आशियाना ओल्ड एज होम ये एक ही वाहिद इदारा है पूरे कर्नाटका में। तो ये हम ना इंस्पिरेशन एक चंद बुज़ुर्ग लोग थे जो हमारे कौम के पढ़े लिखे और आलिम थे, तो वो बेसहारा हो गए, रोड पे आ गए, तो उनको है ना सहारा देने की कोशिश में है ना हम लोग है ना ये इदारा बना दिया है। हम लोगों का प्लान नहीं था कि इदारा कायम करें, लेकिन इत्तफाकन ये है ना चंद लोगों जो बेसहारा होकर रोडों पे आ गए थे उनको सहारा देते देते हम लोग इदारा बना दिए। एक इदारे की है जो डी एडिक्शन सेंटर बनाना चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो हमारे बच्चे ड्रग्स में मुलव्वस होकर जो मुश्किल में आ गए हैं वैसे बच्चों को हम है ना रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालकर उनको है ना तैयार करें फिर से। तो ये है ना एक इदारा बहुत सख्त ज़रूरत है, वार फुटिंग पे इसके ऊपर काम करना चाहिए हम लोगों को। जिस तबके के लोग हैं सर इसमें हर तबके के लोग हैं। ये है ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग काम करते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट भी शुरू किए हैं, ओल्ड एज होम भी शुरू किए हैं, फूड बैंक भी है। इसमें हम लोग है ना भेदभाव नहीं करते, कोई भी धर्म का कोई भी रिलीजन का आदमी आए हम लोग है ना उसको मदद करते हैं। आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओपनिंग सेरेमनी है, उसके साथ जामिया आमिना लिल बनात की भी ओपनिंग सेरेमनी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट जिसके जानिब से ये सारी चीज़ें चल रही है उसके 25 इयर्स यानी कि सिल्वर जुबली है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं कि वी वर एबल टू सर्व ह्यूमैनिटी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ स्टिल अ लॉन्ग जर्नी अहेड, सो वी स्टिल हैव टू कंटिन्यूसली सर्व ह्यूमैनिटी। इंशाल्लाह हमारे दिमाग में ये है कि हम करेंगे और बहुत कुछ।